Yo, welcome to Physics with Vinay Uppal. Hi, I'm Vinay Uppal and I'm back. This is season 4, episode number 3 from the prediction series. Prediction series में I bring to you questions from various sources जो out of the box thinking require करते हैं, which JEE Advanced has been trying to ask in the past few years, starting from 2019, 2020. काफ़ी out of the box thinking required वाले questions पूछते हैं JEE from various type of sources, even including research papers, including MIT courses. So in this episode, I'm bringing to you a question from a course in Princeton University. तो लास्ट ईयर JEE 2023 में MIT के एक कोर्स से फ्लूइड मैकेनिक्स में JEE ने क्वेश्चन पूछा था. This year I'm trying to predict which question can come. So I'm bringing to you a question from a course from Princeton University मैकेनिक्स में. यहाँ पर I would like you to try out the question. So you take a look at the question that I'm going to display on the screen. एक बार question देख लो. इसमें question में पूछा गया है to find the angle, but in theory वो angle solve करना, fully solve करना possible है नहीं. So just make an equation that can theoretically tell you how to get the angle. So just try and find the equation. That will be good enough. No need to try to solve it. Alright, so take a look, pause the video, try the question and then take a look at the solution. Alright, let's take a look. तो मेरे पास एक sphere है, ball बोला है, मतलब वो fixed मानेंगे अपन sphere, and एक rubber ring है या ring that follows Hooke's law. ठीक है. So ये पूछा गया ये angle कितना होगा in equilibrium. Alright, ये रेडियस r बोला हुआ है, नेचुरल लेंथ तो सर्कमफ्रेंस है, जो रिलैक्स लेंथ है नेचुरल लेंथ वो L0 बोला गया है. सो आई वांट टू फाइंड कि कितना एंगल पर वो इक्विलिब्रियम में रहेगा. देन स्मूथ है, द बॉल इज स्मूथ. ऑलराइट, सो एक तरीका है, इसको दो तरीके से कर सकते हैं. एक तरीका है छोटे छोटे एलिमेंट्स कंसिडर करके एनालिसिस करने को. सो दैट इज वन वे एंड ड्राइंग द FPD. And the other way is to write the potential energy and then check and use the condition for equilibrium that we know for potential energy क्या होता है. So I'm going to do the other way. You can try out the element way by yourself. Both methods are equally fast. There is no real advantage over one method over the other. But in this video I'm going to do it by the energy method. देख लो. तो इसका जो energy है in general, let's say ये Y बोलता हूँ, ठीक है. तो can I write its energy, potential energy as, let me take the reference line for gravitational potential energy at the center of the sphere, ठीक है. So mgy, इसका center of mass y coordinate है, plus half kx square, x is the extension. तो यहाँ पे extension कितना हो जाएगा? Let me write it this way. The extension would be, इसका जो radius है वो कितना है? That radius, let's call it r dash. So extension would be 2 pi r dash minus L naught का square, correct? ये बोलता हूँ, alright? And यहाँ पर ये जो r dash है, that is the radius of that ring. Small r is the radius of the sphere. So circumference of the ring finally in equilibrium minus the natural circumference and उसका square. So that is the extension, उसका square, ठीक है. अब r dash को I can express it in terms of r and y, but theta पूछा है तो let me express everything in terms of theta. So let me write y as r cos theta plus half k into ये r dash कितना हो जाएगा r sin theta. ठीक है. So this is my potential energy. Now potential energy के लिए what expression would we like to write for the potential energy? We know from our study in mechanics, work par energy chapter वगैरह से मुझे पता है कि potential energy of a system equilibrium में it attains an extrema, या तो local minima या तो local maxima. Basically उसका derivative should be 0, correct? So that is what I'm going to do. ये 0 कर दूंगा, बस वही करना है अपने को. देखो क्या मिल जाएगा मेरे पास, माइनस mgr sin थीटा प्लस ये बन जाएगा k इंटू 2 पाई r sin थीटा माइनस L नॉट इंटू अंदर जाके इसका डेरिवेटिव विच वुड बी 2 पाई r cos थीटा शुड बी 0. ठीक है. तो एक तो
एक यहाँ पर मैं ये स्मॉल आर कैंसिल कर सकता हूँ, बाकी तो कुछ नहीं। ठीक है, तो बस बेसिकली यही इक्वेशन है एंड आई डोंट वांट यू टू ट्राई टू सॉल्व इट, जस्ट दिस इक्वेशन इज गुड इनफ इफ यू गॉटन इट, वेरी गुड। तो ये देखो क्या बन जाएगा मेरे पास, mg sin थीटा शुड बी इक्वल टू 2 पाई के ठीक है, ये cos थीटा को मैं यहां पर लेकर tan थीटा भी बना सकता हूं, तो एक रिलेशन आ गया बेसिकली, मतलब यू कैन से tan थीटा इज 4, लेट मी जस्ट राइट दिस वे। ऑलराइट, अब इस चीज को सॉल्व करने की जरूरत है नहीं, आई एम नॉट श्योर कि ये सॉल्व भी कर पाओगे विद इन द नॉलेज ऑफ मैथ्स दैट यू स्टडी इन जेईई, बट दिस इक्वेशन इज गुड इनफ। ओके, क्वेश्चन में ऐसा पूछ सकते हैं कि थीटा दे देंगे एंड नेचुरल लेंथ L नॉट वगैरह पूछ सकते हैं, वैसा पूछ सकते हैं। ऑलराइट, सो दैट इज व्हाट द क्वेश्चन डिमांडेड। इट्स नॉट वेरी डिफिकल्ट क्वेश्चन, बट इट इज अ वेरी, मतलब इट्स अ प्रॉपर जेईई एडवांस लेवल क्वेश्चन। ठीक है, ऑलराइट, तो इससे इंस्पायर्ड मैंने खुद से एक और क्वेश्चन बनाया है विच आई वुड लाइक यू टू ट्राई इट आउट, आई विल डिस्प्ले इट ऑन द स्क्रीन। सो इट्स अ नाइस क्वेश्चन, टेक योर टाइम, ट्राई इट आउट। इससे थोड़ा सा ज़्यादा कॉम्प्लेक्सिटी थोड़ा सा बढ़ा के दिया मैंने, थोड़ा एडिशनल कॉन्सेप्ट भी ऐड किया है उस क्वेश्चन में। सो टेक अ लुक ऑन द स्क्रीन एंड देन ट्राई इट आउट ऑन योर ओन एंड देन यू टेक अ लुक एट माई सोल्यूशन। ऑलराइट, देख लो। सो लेट्स टेक अ लुक एट दिस क्वेश्चन। तो मेरे पास एक रबर रिंग है जिसको रेस्ट से रिलीज किया गया। ठीक है, ये 45 डिग्रीज दिया हुआ है, पूछा गया कि कितने टाइम में इट विल कम बैक टू इट्स ओरिजिनल पोजीशन। सो लेट्स फर्स्ट फिगर आउट किस तरीके का मोशन होगा। सो इट फॉलोज हुक्स लॉ एंड जो फोर्स कांस्टेंट है, कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी बिटवीन द फोर्स, द इंटरनल टेंशन एंड द एक्सटेंशन, वो 2 न्यूटन पर मीटर दिया हुआ है, मास भी दिया हुआ है। ठीक है, सो सबसे पहले तो लेट्स से कि जो रिलैक्स्ड लेंथ है, जब मतलब जब टेंशन जीरो है, लेट से कुछ रिलैक्स रेडियस बोलता हूँ, मतलब जब टेंशन जीरो तब उसका रेडियस आर नॉट है लेट से। ठीक है, मतलब उसका सर्कमफ्रेंस 2 पाई आर नॉट बन जाएगा। सो लेट से इनिशियली क्वेश्चन में बोला गया था इट इज रिलीज फ्रॉम रिलैक्स्ड लेंथ। तो ये जो लेंथ है, ये रेडियस आर नॉट है इनिशियली, तो ये लेंथ भी आर नॉट हो जाएगा। ठीक है, उसका वाई कोऑर्डिनेट जो है, रिंग का जो सेंटर से रिंग का जो वाई कोऑर्डिनेट है, ऊपर से मैं मेजर कर रहा हूँ वाई, तो वो आर नॉट बन जाएगा। ठीक है, आफ्टर सम टाइम एट सम इंस्टेंट लेट से वो एक्सटेंड होके नीचे आ गया। तो लेट से दिस इज द वाई कोऑर्डिनेट measured from the I'm measuring it from the top of the cone of the ring at some instant, some general instant. ठीक है, तो उसका रेडियस भी y बन जाएगा, है कि नहीं, क्योंकि 45 डिग्रीज दिया है ना, इसलिए। Alright, so first of all, can I conserve the energy of the ring from this point to this point? So सबसे पहले तो let me take potential energy, ग्रेविटी का पोटेंशियल एनर्जी जीरो यहाँ पर लेता हूँ। सो इनिशियली पोटेंशियल एनर्जी कितना हो जाएगा, माइनस एम जी आर नॉट। ठीक है, बिलो द जीरो लेवल है ना, कुछ काइनेटिक एनर्जी नहीं है एंड कुछ स्प्रिंग एनर्जी भी नहीं है, जो हाफ के एक्स स्क्वायर अपन लिखेंगे वो इनिशियली तो कुछ नहीं है, रिलैक्स्ड है। फाइनली कितना हो जाएगा, माइनस एम जी वाई प्लस हाफ के इंटू द एक्सटेंशन का स्क्वायर। एक्सटेंशन कितना हो जाएगा, फाइनल रेडियस y है, इनिशियल रेडियस r नॉट है, सो एक्सटेंशन इन द लेंथ मतलब सर्कमफ्रेंस, सो 2 पाई y माइनस r नॉट द होल स्क्वायर प्लस हाफ एम वी स्क्वायर, वेयर v इज द स्पीड ऑफ द रिंग एज इट इज कमिंग डाउन। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू शुड अंडरस्टैंड ये v मतलब कौन से डायरेक्शन में है, वो वेलोसिटी, इट्स नॉट वर्टिकल। तो ये कॉमन मिस्टेक है कि सेंटर ऑफ मास ऑफ द रिंग is traveling vertically, वो तो ठीक है, center of mass of the ring is traveling vertically, but the individual elements of the ring are all traveling down the cone. ठीक है, they're all traveling down the cone. So this speed is the velocity of the individual elements of the ring traveling down the cone. ठीक है, then you can write half mv square as the kinetic energy. Okay, अब
यहां से मुझे क्या मिलेगा, आई विल गेट v स्क्वायर। तो स्पीड निकाल देते हैं, देन वी विल सी व्हाट वी कैन डू विद दैट। तो देखो v स्क्वायर का वैल्यू कितना आ जाएगा, सो v स्क्वायर हाफ एम वी स्क्वायर कैन बी रिटन एज, ये इस चीज़ को यहाँ पर लेता हूँ एंड इस चीज़ को लेफ्ट में लेता हूँ, सो आई कैन राइट, लेट मी जस्ट राइट इट दिस वे, हाफ एम वी स्क्वायर इज एम जी इंटू वाई माइनस आर नॉट माइनस हाफ के, चाहिए 4 पाई स्क्वायर बन जाएगा, तो ये 2 पाई स्क्वायर के इंटू वाई माइनस आर नॉट का स्क्वायर, ठीक है। सो वी स्क्वायर कितना बन जाएगा, वी स्क्वायर वुड बी 2g इंटू वाई माइनस आर नॉट माइनस 4 पाई स्क्वायर के बाय एम इंटू वाई माइनस आर नॉट द होल स्क्वायर। अब इसके साथ, अभी इसके आगे मैं क्या करूँ, तो कैन आई गेट द एक्सेलरेशन, कैन आई गेट द एक्सेलरेशन, v पता है तो मुझे एक्सेलरेशन पता है, v dv by dy करके कर सकता हूँ, करेक्ट। सबसे पहले तो आई वुड लाइक, व्हाट आई वुड लाइक टू डू इज आई वुड लाइक टू गेट द एक्सेलरेशन ऑफ द सेंटर ऑफ मास। सो फर्स्ट आई वुड लाइक टू गेट द वेलोसिटी ऑफ द सेंटर ऑफ मास। तो सेंटर ऑफ मास का जो वेलोसिटी है वो तो वर्टिकल है, रिंग का सेंटर ऑफ मास जो है वो तो वर्टिकल जा रहा है। सो कैन आई से सेंटर ऑफ मास का जो वेलोसिटी दैट इज v by रूट 2, करेक्ट। ये जो वेलोसिटी है उसका वर्टिकल कंपोनेंट है ना, वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ द वेलोसिटी ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ द रिंग। सो आई कैन से vcm square would be v square by 2 from this equation. So v square by 2 मतलब कितना आ जाएगा, g times y minus r naught minus 2 pi square k by m into, ठीक है। अच्छा, ये मेरा vcm square आ गया। अब इसके साथ, इसके आगे भी क्या करूँ मैं, vcm square को अगर मैं डिफरेंशिएट करूँ विथ रिस्पेक्ट टू y तो क्या आ जाएगा, 2vcm dvcm by dy। what is this, vcm into dvcm by dy, vdv by dy क्या होता है, एक्सेलरेशन होता है ना। ये तो अपना स्टैंडर्ड काइनेमेटिक्स का इक्वेशन है। सो देखो मेरे पास ये चीज एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास बन गया। ओके, सो लेट मी जस्ट इरेज दैट एंड राइट 2acm। ऑलराइट, सो एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, ट्वाइस ऑफ एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास इज, इसका डेरिवेटिव कितना आ जाएगा, g माइनस यहाँ पर आ जाएगा 4 पाई स्क्वायर के बाय m इंटू वाई के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया है ना, ठीक है। सो एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास विल बी 2 से डिवाइड कर देता हूँ, ये चीज हो जाएगा, करेक्ट। सो नेट फोर्स, द नेट फोर्स ऑन द रिंग, नेट फोर्स इज मास इंटू एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, नेट फोर्स ऑन द रिंग वुड बी mg by 2, मास से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, प्लस 2 पाई स्क्वायर के आर नॉट। तो ये कांस्टेंट टर्म हो गया पूरा, देखो मास से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, माइनस 2 पाई स्क्वायर के y। ओके, सो द नेट फोर्स ऑन द रिंग हैज अ कांस्टेंट टर्म एंड अनदर टर्म व्हिच इज प्रोपोर्शनल टू द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द रिंग, and it is opposite to the displacement of the ring. So this is nothing but SHM, correct? Normal SHM जैसे अगर spring block system है, एक spring block system है, उस पर क्या फोर्स लगता है, फिर नेचुरल लेंस रिलीज किया उसको वो y नीचे गया तो क्या फोर्स लगेगा, अगर मैं डाउनवर्ड पॉजिटिव लूँ, डाउनवर्ड डायरेक्शन में क्या फोर्स लगेगा, mg माइनस kx, मतलब x मतलब y। वैसी ही चीज है यहाँ पर, this is SHM, compare a constant force and a proportional force, हो गया। so this represents my k equivalent for the SHM। तो रिंग SHM कर रहा है बेसिकली। जब भी हुक्स लॉ देखा ना, यहाँ पे लिखा नहीं मैंने, बट whenever the question says that the ring or something obeys Hooke's law, तो तुम्हारे मन में आना चाहिए कि most of the time there is SHM involved, ठीक है। अच्छा, सो k इक्विवेलेंट इज 2 पाई स्क्वायर के हो गया ना। अभी मेरा बेसिकली क्या करना है मुझे, इट इज रिलीज फ्रॉम रेस्ट, मतलब एक एम्पलीट्यूड से रिलीज किया, नीचे गया, वापस वो उस एक्सट्रीम पोजीशन पे आया, मतलब वन ऑसिलेशन। सो टाइम दैट आई एम आस्किंग इज वन ऑसिलेशन, फर्स्ट टाइम इट कम्स बैक, दैट विल बी 2 पाई ओमेगा 2 पाई रूट m बाय k इक्विवेलेंट। सो 2 पाई, मास कितना दिया मैंने 0.01 kg, 10 ग्राम दिया था, एंड k इक्विवेलेंट मतलब 2 पाई स्क्वायर इंटू k का वैल्यू 2, ठीक है। तो पाई पाई कट गया,
ये 4 2 कट गया 0.1 सेकेंड एंड दैट्स द आंसर. 0.1 सेकेंड में इट विल कम बैक. ऑलराइट, इस चीज को एक और तरीका है करने का बाय द एलिमेंट एनालिसिस, एलिमेंट को कंसिडर करके, बट दिस इज ऑल्सो क्वाइट स्ट्रेट फॉरवर्ड. ओके, देख लो. That's it for today. Let's see you at the top. Good night.